Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope that you all will be fine and safe. Today we will start our first online lesson for the course of Algebra. First of all, I will present to you some summary of the previous lessons. We will quickly revise what we have covered in the previous lessons. You remember that we start this course from the very basic. First of all, we introduce the course, we discuss some history and developments. After that, we discuss the binary operation with the help of examples. And then we study the concept of the group with many important examples. Then we discuss abelian groups and non-abelian groups. Then finite groups. And after that, we discuss some basic properties of groups. And then we draw and discuss the table of some important classes of groups along with some important properties. Then we define order of group and order of elements in group, and we learn that how to compute the order of elements in a group. And also we studied some formulas to compute the order of elements. And then we discuss the concept of subgroups. Then subgroup test, we learned that there are three subgroup tests: one-step subgroup test, two-step subgroup test, and finite subgroup test. Then we start the topic of cyclic groups. A cyclic group is a group which can be generated by a single element. And then we learn about the generators of cyclic groups, how to identify the generators of a cyclic group, what is the method to find the generators of cyclic group. In fact, the generator of a, a cyclic group is not unique. And we learned that in a finite group, if some element has order equal to the order of group, then that element will be the generator of the group. And we learned that if the group is infinite, then it has exactly two generators, and if group is finite of order n, then the number of generators can be computed by using Euler's phi function. Also, we learned as a particular case, we learned that how to find the generators of the cyclic group Zn. We learned this in our course, and after that we start about the subgroups of cyclic groups. We proved that every subgroup of a cyclic group is cyclic. So this is a brief summary of what we have covered in our lessons. और इसके बाद इसको ज़रा और हम ज़रा आसानी से इसको ज़रा आसान लफ्ज़ों में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये वो सारे टॉपिक हैं जो आपने पहले 9-10 लेक्चर्स में कवर किए थे, और मैंने आपसे कहा भी था कि इन सारे लेक्चर्स को आप रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको आगे अच्छी तरह समझ आए। और इन लेक्चर्स के बाद, इन टॉपिक्स के बाद आपका फर्स्ट सेशनल एग्ज़ाम हुआ था, और फर्स्ट सेशनल एग्ज़ाम में आप याद करें कि ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। इसमें पहला क्वेश्चन था प्रूव दैट ये एक मैट्रिसेस का एक सेट है 2x2 मैट्रिसेस। इसमें डायगोनल मैट्रिसेस हैं विद इंटीजर एंट्रीज, और आपने चेक करना था कि ये इसका सब ग्रुप है कि नहीं है, जनरल लीनियर ग्रुप का सब ग्रुप है कि नहीं है अंडर द ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। फिर आपसे ये Z30 एक साइक्लिक ग्रुप है, और आपसे पूछा गया था कि इसके जनरेटर्स कौन कौन से होंगे। और इसके बाद एक क्वेश्चन था कि अगर किसी साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर 880 हो तो इसके जनरेटर्स कितने होंगे, हाउ मैनी जनरेटर्स। तो इसके बाद ये थ्योरम आपका प्रूफ आपसे पूछा गया था, प्रूफ दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक,
और फिर कुछ एग्जांपल्स पूछी गई थी। इंशाल्लाह कल ऑनलाइन सेशन में हम कोशिश करेंगे इन क्वेश्चन का सलूशन हम डिस्कस करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट टाइम हमने यही प्रूव किया था कि एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, और आप इसका प्रूफ ज़रा अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा कि इसका प्रूफ में हमने कौन कौन से स्टेप्स किए थे जब हमने प्रूफ किया था कि साइक्लिक ग्रुप का हर सब ग्रुप साइक्लिक होता है। ये वाला थ्योरम हमने प्रूफ किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस थ्योरम के बाद इसमें इस लेक्चर में हम जो है ज़्यादातर हम गुफ्तगू करेंगे साइक्लिक ग्रुप्स के सब ग्रुप्स के बारे में, कि साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप किस तरह के होते हैं, कितने होते हैं, और यानी कि पूरी हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, यानी मुकम्मल तफसील जानने की कोशिश करेंगे साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप्स के बारे में। साइक्लिक ग्रुप्स के सब ग्रुप्स के बारे में पहली चीज़ हमें ये पता चली कि अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है तो उसका जो सब ग्रुप है वो भी लाजमी साइक्लिक होगा। ठीक है, अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है तो उसका सब ग्रुप भी लाजमी तौर पे साइक्लिक होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहली एक एक्सरसाइज है, इसमें हमने शो करना है कि शो दैट ये जो रैशनल नंबर्स का ग्रुप है ये अंडर एडिशन ग्रुप होता है, हम जानते हैं, और प्रूफ करना है कि ये ग्रुप साइक्लिक नहीं है। इसको प्रूफ करना है कि ये साइक्लिक नहीं है, और इसका प्रूफ समझने की कोशिश करें। इसको हम कंट्रडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। कंट्रेरी हम सपोज कर लेते हैं कि क्यू जो है वो साइक्लिक है, ठीक है, और फिर एंड पे कंट्रडिक्शन आ जाएगी, यहाँ पे कंट्रडिक्शन आ जाएगी। अब देखिए, अगर हमने इसको सपोज कर लिया कि ये साइक्लिक है तो इसका मतलब है इसका कोई ना कोई हमें सिंगल जनरेटर लाजमी मिलेगा। फर्ज करें ये किसी रैशनल नंबर ए ओवर बी से जनरेट हो रहा है, और रैशनल नंबर का आपको पता ही है कि इसमें जो ए और बी इंटीजर होंगे और बी नॉन ज़ीरो होना चाहिए। और हम इसको कैंसलेशन करने के बाद अगर इसमें कोई कॉमन है और बी में तो वो हम कैंसिल कर देंगे, और आफ्टर कैंसलेशन हम अज्यूम कर सकते हैं कि अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं रहा, यानी इनका जीसीडी 1 है। मसलन फ़र्ज करें ये अगर 4/6 है तो 2 कॉमन है, 2 से हम कैंसिल कर देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करके ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है कि फिर मज़ीद कोई चीज़ कॉमन ना रहे, यानी जीसीडी 1 आ जाए। ठीक है, यहाँ यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब आप अगली बात नोट करें, नोटिस दैट कि ये जो एलिमेंट है ये एक पर्टिकुलर हमने एलिमेंट जानबूझ के ये इस तरह का एलिमेंट लिया a/3 भी, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो इसलिए ये रैशनल नंबर है तो ये क्यू में होगा, और क्यू जो है वो इससे जनरेट हो रहा है। इसका मतलब है ये एलिमेंट इसका कोई मल्टीपल होगा, क्योंकि ये साइक्लिक ग्रुप है अंडर एडिशन। और अगर ग्रुप साइक्लिक हो अंडर एडिशन तो उसके सारे एलिमेंट्स जनरेटर के मल्टीपल्स में लिखे जाते हैं, ठीक है ना। और अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन हो तो फिर उसकी पावर में लिखे जाते हैं। ये तो आपको पता है ना, क्योंकि अंडर एडिशन आपको पता है कि अगर ग्रुप अंडर एडिशन हो तो फिर उसकी पावर्स जो होती हैं वो मल्टीपल्स की फॉर्म में ली जाती हैं। मसलन अगर आप ग्रुप अंडर एडिशन है और आप ए से जनरेट करना चाह रहे हैं तो इसके एलिमेंट्स फिर इस तरह पावर्स लेंगे, 1.a, ठीक है, 2.a, 3.a, यानी पावर्स फिर अंडर एडिशन इस तरह से ली जाएंगी। और अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन होता तो फिर ए के ऊपर पावर 1, ए के ऊपर पावर 2, ए के ऊपर पावर 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्योंकि क्यू जो है वो अंडर एडिशन है, इसको अंडर एडिशन हमने कंसीडर किया है, और ये a/b से जनरेट हो रहा है तो इसका हर एलिमेंट a/b का मल्टीपल होगा, ठीक है, क्योंकि अंडर एडिशन है ये। तो हमने ये चीज़ लिख ली फॉर सम इंटीजर n, ठीक है ना। आप जानते हैं कि अगर आप किसी ग्रुप को अगर a से जनरेट करें तो इसके एलिमेंट किस, अगर अंडर एडिशन है तो इसके एलिमेंट इस तरह के होंगे, n टाइम्स a सच दैट n बिलोंग्स टू z। और अगर ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा तो फिर इसके एलिमेंट्स आप जानते हैं, हम इस तरह लिख लेते हैं a पावर n सच दैट n बिलोंग्स टू z। ये थोड़ा डिफरेंस आपको शुरू की क्लासों में बताया जा चुका है कि बाइनरी ऑपरेशन चेंज होने से पावर्स पे क्या असर पड़ता है। ठीक हो गया।
और यहाँ से फिर आप यहाँ तक पहुँच गए, आपने सपोज किया क्यू साइक्लिक है, इसका कोई जनरेटर होगा, इसमें से कॉमन एलिमेंट्स को कैंसिल करके हम अज्यूम कर सकते हैं कि इनका जीसीडी 1 है। अब ए ओवर थ्री बी जो है वो इसमें बिलोंग करेगा, और ये फिर ए ओवर थ्री बी को लिख सकते हैं ए ओवर बी मल्टीप्लाइड बाई सम पावर सम एलिमेंट एन, और कैंसिल करके हमें पता चलेगा एन इक्वल्स टू 1/3, और विच इज़ ए कंट्रेडिक्शन, क्योंकि एन तो इंटीजर है, वो 1/3 के इक्वल नहीं आ सकता, तो हमें कंट्रेडिक्शन मिल गई। इससे प्रूफ हो गया कि क्यू साइक्लिक नहीं है। तो इस तरह और भी ट्रिक्स हैं इसको प्रूफ करने के, लेकिन ये एक सिंपल ट्रिक है, इस तरह भी आप प्रूफ कर सकते हैं कि ये और आप ए ओवर टू बी भी ले सकते हैं, आप ए ओवर फोर बी भी ले सकते हैं, फाइव बी भी, यहाँ पे आप और एलिमेंट भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है, कंट्रडिक्शन आ जाएगी। अब हम आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपके सामने, हमने शो करना है कि द ग्रुप जो रियल नंबर्स के ग्रुप पे अंडर एडिशन वो भी साइक्लिक नहीं है, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ग्रुप पे अंडर एडिशन साइक्लिक नहीं है। अब हमारा काम थोड़ा आसान हो गया, आसान इस सेंस में हो गया क्योंकि हमें पता है कि क्यू आर का सब ग्रुप है और आर सी का सब ग्रुप है, और क्यू साइक्लिक नहीं है। अगर क्यू साइक्लिक नहीं है तो फिर इस थ्योरम की मदद से, ये थ्योरम हमें कहता है कि अगर ग्रुप साइक्लिक हो तो उसका सब ग्रुप लाजमी साइक्लिक होना चाहिए। इसका मतलब है कि आर साइक्लिक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आर साइक्लिक होता तो फिर क्यू लाजमी साइक्लिक होता, क्योंकि क्यू इसका सब ग्रुप है, तो हेंस क्यू कैन नॉट, आर कैन नॉट बी साइक्लिक। सिमिलरली सी भी साइक्लिक नहीं हो सकता, क्योंकि सी अगर साइक्लिक होता तो इसके सारे सब ग्रुप साइक्लिक होते और इन पर्टिकुलर क्यू भी साइक्लिक होता। तो अब हमें क्योंकि नज़र आ गया कि क्यू साइक्लिक नहीं है, क्यू इज़ नॉन साइक्लिक, और ये अगर और सी इसका मतलब है साइक्लिक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सी साइक्लिक होता तो फिर क्यू को साइक्लिक होना पड़ता बाय दिस थ्योरम। ठीक है, कि अगर ग्रुप साइक्लिक हो तो उसका सब ग्रुप लाजमी साइक्लिक होगा। इस थ्योरम की मदद से हमने पहले प्रूफ, इसको यूज करके हमने प्रूफ कर लिया कि आर और सी साइक्लिक नहीं है। अगर किसी ग्रुप का एक भी सब ग्रुप साइक्लिक ना हो तो वो साइक्लिक नहीं रहता बाई अबव थ्योरम, क्योंकि अगर ग्रुप साइक्लिक हो तो उसके सारे सब ग्रुप को साइक्लिक होना पड़ता है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज, दिस इज रेशो दैट द ग्रुप्स दिस Q star under multiplication, R star under multiplication and C star under multiplication are non-cyclic। यहाँ पे स्टार का मतलब है इसमें से जीरो माइनस किया हुआ है, तो उसी तरह वही टेक्निक लगाएंगे। पहले अंडर एडिशन था, अब अंडर मल्टीप्लिकेशन है। फर्स्ट वी शो दैट Q star that is equal to Q minus 0 is not cyclic। और इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? कंट्रेरी वी सपोज दैट क्यू स्टार इज साइक्लिक। अगर इसको साइक्लिक मान लिया है तो फिर इसका कोई जनरेटर होगा, कोई रैशनल नंबर ए ओवर बी। और अब यहाँ पे हमने क्या ट्रिक यूज किया है कि क्योंकि वन जो है वो क्यू स्टार में मौजूद है, इसका मतलब है वन को आप लिख सकते हैं ए ओवर बी होल पावर एन, यानी ये जनरेटर की कोई ना कोई पावर होगा, कोई इंटीजर पावर होगा। अब ये पावर नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर तो ये पावर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है ए ओवर बी का जो ऑर्डर होगा वो एन या उससे कम होगा। ये जो है ये मॉड वैल्यू नहीं है, ये ऑर्डर है, दिस इज ऑर्डर। अगर ए ओवर बी की कोई पावर एन आइडेंटिटी के इक्वल आ रही है तो इसका मतलब है इसका ऑर्डर या एन होगा या उससे कम होगा, तो ये लेस और इक्वल टू एन है। इसका मतलब है ए ओवर बी का ऑर्डर फाइनाइट है, तो इसका मतलब है अगर जनरेटर का ऑर्डर फाइनाइट है तो क्यू स्टार का ऑर्डर भी फाइनाइट हो जाएगा। तो ये फिर फाइनाइट हो गया, ये कंट्रडिक्शन आ जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं ये इन्फिनिट ग्रुप है, ये फाइनाइट नहीं हो सकता। और अगर एन नेगेटिव होगा तो फिर हम दोनों तरफ -1 पावर ले लेंगे, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इधर से रेसिप्रोकल लेफ्ट साइड से वही आ जाएगा और राइट साइड से ये ए ओवर बी पावर -n आ जाएगा। अब -n पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है ए और बी की कोई पॉजिटिव पावर 1 आ गई है, और बाय द सिमिलर रीजन, जैसे हमने ऊपर रीजन दी थी उसी तरह की रीजन यूज करके हमें ये पता चला कि ए और बी का ऑर्डर कोई फाइनाइट नंबर होगा। तो इसका मतलब है कि क्यू स्टार फाइनाइट हो गया, क्योंकि जनरेटर का जो ऑर्डर है वही ग्रुप का ऑर्डर है। तो हेंस ये हमें कंट्रडिक्शन मिल गई है। और अगर एन जीरो होगा तो ये ए और बी जो है वो
वन आ जाएगा और इसमें फिर एक ही एलिमेंट आ जाएगा, अगेन कंट्रडिक्शन। तो हैंस वी कंक्लूड दैट क्यू स्टार इज नॉट साइक्लिक। अब क्यू स्टार क्योंकि इनका सब ग्रुप है इस, और देयरफॉर बाय थ्योरम वन, ये वाला जो थ्योरम वन है इसको अगर यूज करें, ये थ्योरम कहता है कि अगर ग्रुप साइक्लिक हो तो इसके सारे के सारे सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं, लिहाजा अगर एक भी सब ग्रुप साइक्लिक ना रहे तो वो ग्रुप फिर साइक्लिक नहीं रहता। तो देयरफॉर ये वाला जो ग्रुप है, क्योंकि क्यू स्टार साइक्लिक नहीं है, एक सब ग्रुप हमें नजर आ गया जो साइक्लिक नहीं है, इसलिए ये आर स्टार भी साइक्लिक नहीं होगा और सी स्टार भी साइक्लिक नहीं होगा। तो ये हमने कुछ एक्सरसाइजेज में ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, इनको हमने शो किया कि ये ग्रुप साइक्लिक नहीं है। एक क्यू अंडर एडिशन और एक क्यू स्टार, आर अंडर एडिशन और सी अंडर एडिशन, ये सारे साइक्लिक नहीं है। इसी तरह क्यू स्टार, आर स्टार और सी स्टार ये भी साइक्लिक नहीं है। तो इन दो एक्सरसाइजेज में हमने ये बात की है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, हमें गिवन है एक इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप है। फर्ज करें वो इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप है और वो किसी एक्स से जनरेट हो रहा है, और हमने करना क्या है, हमने इसके तमाम सब ग्रुप्स डिस्क्राइब करने के, इसके सब ग्रुप कौन कौन से होंगे। फिर देखें एक इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप है, यानी ग्रुप साइक्लिक है और इन्फिनिट है, यानी इसके जनरेटर का ऑर्डर इन्फिनिट है। तो आप जानते हैं कि अगर इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप हो तो इसमें एक्स की सारी पावर्स आएंगी और ये पावर्स रिपीट नहीं होंगी। अगर फाइनाइट हो तो आपको पता है कि वो रिपीट होना शुरू हो जाती हैं और वो फाइनाइट साइकिल, ये इन्फिनिट है। तो इसका मतलब है इसके जो एलिमेंट्स होंगे उसमें सारी पावर्स आएंगी, ई एक्स पावर वन, एक्स पावर टू एंड सो ऑन, और कोई भी दो पावर बराबर नहीं होंगी, वरना तो एक्स का ऑर्डर फाइनाइट हो जाएगा। तो ये इन्फिनिट सेट आपके सामने है। अब हमने इसमें करना क्या था कि इसमें हमने इसके सारे सब ग्रुप्स डिस्क्राइब करने हैं, और आसान लफ्ज़ों में आसानी के लिए हम बता देते हैं जो चीज़ हमने प्रूफ करनी है, हम शो करेंगे। वी विल शो दैट द सब ग्रुप्स ऑफ जी आर प्रिसाइजली ऑफ दिस फॉर्म, यानी इसका जो भी सब ग्रुप होगा वो एक्स की किसी पावर से जनरेट होगा और वो पावर कोई पॉजिटिव इंटीजर होगी। ये हमने प्रूफ करना है। जी एक इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप है और हमने प्रूफ करना है एक्स से जनरेट हो रहा है, और हमने प्रूफ करना है इसके सारे सब ग्रुप्स एक्स की किसी पॉजिटिव पावर से जनरेट किए जा सकते हैं। ठीक है, ये प्रूफ करना है। और ये यानी ये इसके सारे सब ग्रुप्स हैं, इसके ये सब ग्रुप्स की लिस्ट है। एक्स पावर टी, टी आप चेंज करते जाए, टी वन भी हो सकता है, टू भी, थ्री भी, फोर भी, फाइव भी, ये सारे इसके सब ग्रुप्स की लिस्ट मिल जाएगी। अब इसको हम प्रूफ किस तरह करेंगे, हम सपोज कर लेते हैं लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी। ठीक है, अब अगर तो एच में एक ही एलिमेंट होगा तो वो जो कि आइडेंटिटी है, तो फिर एच जो है वो एक्स पावर जीरो से जनरेट हो गया। और अगर एच में एक से ज्यादा एलिमेंट है तो फिर क्या होगा, जिस तरह आपने वो थ्योरम प्रूफ किया था ना, थ्योरम वन के एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, उस थ्योरम का अगर आप प्रूफ रिवाइज करें तो वही टेक्निक यूज करके एच जो है वो किसी एक्स की पावर टी से जनरेट होगा। और टी में क्या खास बात होगी, वह टी इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट एक्स पावर टी बिलोंग्स टू एच। अगर आप उस थ्योरम का प्रूफ देखें, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप्स इज साइक्लिक, उसमें भी इसी तरह किया था कि एच हमने कोई सब ग्रुप लिया था और फिर हमने कहा था कि अगर उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट है तो उसमें एक्स की, क्योंकि जी साइक्लिक है तो एच में भी उसी के एलिमेंट होंगे और एच में भी एक्स की पावर्स होंगी। तो फिर हमने क्लेम किया था कि उसमें एक्स की पॉजिटिव जो लीस्ट पावर होगी वही उसका जनरेटर होगा, और उस क्लेम को फिर हमने प्रूफ किया था। ठीक है, तो वही वाला प्रूफ को हम अडॉप्ट करेंगे। तो h जो है वो जनरेट होगा x पावर t से, और t क्या है, t ऐसा छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट x पावर t बिलोंग्स टू h। तो इस तरह से ये हो गया। अब अगली बात है, इम्पोर्टेंट बात है कि अगर फर्ज करें ये वाला जो प्रिसाइज हमने प्रूफ करना है कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है और उसमें टी वन से भी जनरेट हो रहा है और टी टू से भी जनरेट हो रहा है, तो फिर ये अगर ये पॉजिटिव इंटीजर हैं तो फिर ये बराबर होंगे।
यानी कहने का मतलब है कि डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर जो है वो सेम ग्रुप जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर डिफरेंट ग्रुप जनरेट करेंगे। मसलन फर्ज करें अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट एक्स पावर टी वन से जनरेट होने वाला ग्रुप अगर एक्स पावर टी टू के इक्वल आ जाए तो फिर क्या होगा, दोनों एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर एक्स पावर टी वन जो है आपका उसमें आ गया, इसका मतलब है एक्स पावर टी वन को आप लिख सकते हैं एक्स पावर टी टू, इसकी होल पावर हम पावर में लिख सकते हैं, होल पावर लेट्स से लैम्डा, और ये आ जाएगा आपके पास सिंप्लीफाई करके एक्स पावर टी वन इक्वल्स टू एक्स पावर लैम्डा टी टू। और यहाँ से फिर क्या होगा कि यहाँ से क्या होगा, क्योंकि एक्स का ऑर्डर इन्फिनिट है, आपने प्रूफ किया हुआ है शुरू में कि अगर शुरू में आपने साइक्लिक ग्रुप्स का जब टॉपिक शुरू किया था, अगर एक्स का ऑर्डर इन्फिनिट हो तो इसकी दो डिफरेंट पावर्स आपको सेम आंसर नहीं दे सकती। यानी कि एक्स पावर, आपने को याद होगा कि आपने शुरू में ये रिजल्ट किया था कि एक्स की दो डिफरेंट पावर्स ये तभी सेम आएंगी अगर टी वन इक्वल्स टू लेमडा टी टू आ जाए, अगर एक्स का ऑर्डर इन्फिनिट है, ठीक है। यानी आपने प्रूफ किया था एक्स पावर आई इक्वल्स टू एक्स पावर जे इफ एंड ओनली इफ आई इक्वल्स टू जे, अगर अगर एक्स का ऑर्डर इन्फिनिट है। तो यहाँ से पता चला टी टू डिवाइड्स टी वन, ठीक है। क्योंकि ये हमें कैसे पता चला, एक्स पावर टी वन क्योंकि इसमें है और ये इसके बराबर है, लिहाजा एक्स पावर टी वन इसमें चला गया, इसको फिर इसकी पावर में लिखा जा सकता है। अब एक्स का ऑर्डर क्योंकि इन्फिनिट है, दो डिफरेंट पावर्स आपको सेम आंसर नहीं दे सकती, लिहाजा ये पावर्स बराबर हो जाएंगी। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, तो लिहाजा यहाँ से पता चला टी टू डिवाइड्स टी वन। सिमिलरली आप प्रूफ कर सकते हैं टी टू डिवाइड्स टी वन, तो दोनों एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, ये दोनों पॉजिटिव हैं इसलिए ये बराबर हो जाएंगे। तो इससे ये नतीजा निकला इस सारी बात से कि एक्स का ऑर्डर अगर इन्फिनिट हो तो दो डिफरेंट पॉजिटिव पावर्स सेम ग्रुप जनरेट नहीं कर सकती। लिहाजा यहाँ पे जो हमने नतीजा निकाला है कि एक्स जो भी सब ग्रुप अगर आप जी का लें वो एक्स की किसी पॉजिटिव इंटीजर पावर से जनरेट होगा और डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स पावर्स जो हैं वो डिफरेंट ग्रुप जनरेट। तो हमने ये नतीजा निकाला, वी कंक्लूड दैट द ग्रुप जी हैज इन्फिनिटली मैनी सब ग्रुप्स। यानी एक तो एक्स पावर जीरो से जनरेट होगा, फिर एक एक्स पावर वन से भी एक जनरेट होगा, एक एक्स पावर टू से, एक एक्स पावर थ्री से, और इस रिमार्क की वजह से ये डिफरेंट पावर्स आपको सेम ग्रुप नहीं दे सकती। इस तरह ये आपको इस सारे सब ग्रुप्स की लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये लिस्ट है इसके तमाम सब ग्रुप्स की, ये जनरेट होंगे एक्स पावर टी, यहाँ पे जो क्लेम किया था ये जनरेट होंगे एक्स पावर टी फॉर सम इंटीजर टी ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो। और यही इसके प्रिसाइजली यही इसके सब ग्रुप्स हैं। अगर कोई भी इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप ले लें जो एक्स से जनरेट हो रहा है तो इसके सब ग्रुप्स कौन से होंगे, वो भी एक्स की पॉजिटिव इंटीजर पावर से जनरेट किए जा रहे हैं, और वही लिस्ट ये होगी, ये मुकम्मल लिस्ट होगी, ये इसी तरह चलता रहेगा। और अब एज ए पर्टिकुलर एग्जांपल फर्ज करें आपसे कहा जाए डिस्क्राइब ऑल सब ग्रुप्स ऑफ जेड, ठीक हो गया। अब देखें Z भी तो एक साइक्लिक ग्रुप है ना, इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप है, और ये वन से जनरेट हो रहा है। अब फर्क सिर्फ इतना है कि पहले हमने जनरल बात की थी, हमने मल्टीप्लिकेटिव नोटेशन यूज की थी, और अब हम मल्टीप्लिकेटिव नहीं एडिटिव नोटेशन यूज कर रहे हैं। बस इतना फर्क है। ये यहाँ पे आइडेंटिटी आ जाएगा, यहाँ पे वन टाइम वन, फिर टू टाइम वन, थ्री टाइम वन एंड सो ऑन। और जैसे कि ऊपर बात की थी वही वाला अबव, भाई अबव एक्सरसाइज के जो सब ग्रुप्स होंगे वो एक्स पावर टी से जनरेट होंगे, और यहाँ पे एक्स पावर टी का मतलब होगा टी टाइम्स वन, क्योंकि वन जनरेटर एक्स की जगह वन आ जाएगा, और ग्रुप अंडर एडिशन होने की वजह से टी बजाय ऊपर पावर में जाने के मल्टीपल में आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ ऊपर वाले रिजल्ट में हमने एक्स की जगह वन यूज किया है और ये जो पावर है उसको मल्टीपल में लिखा है, बस इतना किया है। एक्स की जगह वन कर दिया है और ये जो पावर्स है इनको मल्टीपल में ले गए हैं।
तो हमें ये लिस्ट मिल गई है Z के सब ग्रुप्स की। Z के ये तमाम सब ग्रुप्स की लिस्ट है। 0 Z खुद है, फिर 2 के मल्टीपल्स, 3 के मल्टीपल्स एंड सो ऑन। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इन एक्सर हमने अभी तक एक ही थ्योरम को यूज़ किया है और वो थ्योरम है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप पे साइक्लिक, उसको उसकी मदद से फिर कुछ 2 एक्सरसाइजें हल की हैं। फिर मज़ीद कुछ एक्सरसाइजेज में हमने क्या किया है, हमने एक इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप लेके उसके तमाम सब ग्रुप्स की लिस्ट फाइंड की है और एज एन पर्टिकुलर एग्जांपल हमने Z के तमाम सब ग्रुप्स फाइंड किए हैं। ठीक है, अब हम फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की तरफ आते हैं। ये जो पीछे ऊपर वाली एक्सरसाइजेज है ना, ये इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप था। इसके सब ग्रुप्स तो होंगे तो साइक्लिक, लेकिन उनकी तादाद इन्फिनिट ही होगी। लेकिन अब जो नेक्स्ट थ्योरम है उसमें हम बात करेंगे फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप्स की। यानी अगर जी कोई साइक्लिक ग्रुप एक्स से जनरेट हो रहा है और ये फाइनाइट है, ठीक है, ऑर्डर एन है, तो फिर इसके सब ग्रुप कौन कौन से होंगे, किस तरह जनरेट होंगे और वो कितने होंगे, ये अब हमने जानने की कोशिश करनी है। पिछली एक्सरसाइज में इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप्स के सब ग्रुप निकाले थे। इस थ्योरम में अब हम फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप निकालेंगे। ये थ्योरम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स में आता है। जो पहला थ्योरम है वो भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स में आता है। ये दोनों जो है ये मिल के फंडामेंटल थ्योरम बनाते हैं। इसके 2 पार्ट्स हैं। तो ये फंडामेंटल थ्योरम का सेकंड पार्ट है ये थ्योरम कि जी अगर कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर एन का, तो फिर देन फॉर ईच पॉजिटिव डिवाइजर d of n, the group G has a unique subgroup which is generated by x power n over d of order d। यानी अगर आपके पास कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप पे ऑर्डर n का x उसका जनरेटर है, तो फिर n के हर डिवाइजर के लिए आपको एक यूनिक सब ग्रुप मिलेगा। हर डिवाइजर के लिए जितने डिवाइजर होंगे उतने ही सब ग्रुप मिलेंगे। और वो जो सब ग्रुप मिलेगा वो किससे जनरेट होगा, जी तो x से जनरेट हो रहा है ना, तो वो ग्रुप जनरेट होगा x की पावर n ओवर d से जनरेट होगा और इस ग्रुप का ऑर्डर d होगा। ये बताया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये बीएससी क्लासेस में भी आप पढ़ के आते हैं कि जी अगर कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर n का, देन फॉर ईच पॉजिटिव डिवाइजर d ऑफ n, यानी जी के ऑर्डर का कोई भी डिवाइजर ले लें तो उसका एक यूनिक सब ग्रुप होगा ऑर्डर d का, उस डिवाइजर जितने ऑर्डर का जितना डिवाइजर होगा, और वो जनरेट होगा x पावर n ओवर d से। लें जी, अब इसका हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ किस तरह होगा, हम सपोज कर लेते हैं लेट d बी एनी पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कि d कोई n का पॉजिटिव डिवाइजर है। अब हमें प्रूफ करके देना है कि g का एक यूनिक सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है जिसका ऑर्डर इस डिवाइजर के ऑर्डर के बराबर है, जिसका ऑर्डर इस डिवाइजर के बराबर है, और वो जनरेट हो रहा है x पावर n ओवर d से। ये हमने प्रूफ करना। वी विल शो दैट x पावर n ओवर d से जो ग्रुप जनरेट होगा वो एक यूनिक, यानी सिर्फ यही एक सब ग्रुप होगा g का ऑफ ऑर्डर d का। ये हम प्रूफ कर देंगे, तो इससे थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। हमने प्रूफ करना है कि फॉर ईच पॉजिटिव डिवाइजर d of n, g has exactly one subgroup of order d which is generated by x power n over t। तो हमने एक डिवाइजर सपोज किया, d जो है वो एक पॉजिटिव डिवाइजर है n का, और हम शो करेंगे कि x पावर n ओवर d से ऑफ कोर्स हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट से सब ग्रुप जनरेट हो सकता है। तो हम x पावर n ओवर d से ग्रुप जनरेट करेंगे और हम शो करेंगे कि ये g का एक यूनिक सब ग्रुप है और इसका जो ऑर्डर है वो d है। ये तो हमें पता है कि ये इसका सब ग्रुप है क्योंकि ये एलिमेंट g में से हमने लिया है। g का हर एलिमेंट x की पावर में होगा और इससे जो भी ग्रुप जनरेट करेंगे वो इसका सब ग्रुप होगा। ये बात अंडरस्टूड है कि ये इसका सब ग्रुप है। और हमने प्रूफ करना है कि ऑर्डर डी का सिर्फ यही एक सब ग्रुप है, इसके अलावा और कोई सब ग्रुप नहीं है ऑर्डर डी का जी के अंदर। तो इस क्लेम को फिर हम प्रूफ करने जा रहे हैं।
प्रूफ हम किस तरह करेंगे? पहली बात हम ये नोट करेंगे कि इसका जो इस सब ग्रुप का, जिसको हमने प्रूफ करना है कि ये यूनिक सब ग्रुप है और जी का ऑफ ऑर्डर डी, इसका ऑर्डर देखते हैं कितना है। तो इसका ऑर्डर वही होगा जो इसके जनरेटर का ऑर्डर होगा, क्योंकि हम जानते हैं साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर उसके जनरेटर के ऑर्डर के बराबर होता है। और अब हमें एक फार्मूला पता है कि एक्स की किसी पावर का ऑर्डर निकालना हो तो वो किसके बराबर होता है? एक्स का ऑर्डर डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ दिस ऑर्डर ऑफ एक्स एंड दिस पावर। ठीक हो गया। अब क्योंकि अगली बात है, क्योंकि डी एन का डिवाइजर है तो डी के इस तरह एन को इस तरह फैक्टराइज किया जा सकता है इंटीजर्स में। डी क्योंकि एन को डिवाइड करता है, ये भी कोई इंटीजर आएगा, तो इसका मतलब है डी भी इसका डिवाइजर है एन और डी भी इसका डिवाइजर है, ये दोनों इसके डिवाइजर हैं। डिवाइजर मीन फैक्टर। तो अब क्योंकि एन ओवर डी इस नंबर का डिवाइजर है, इसका मतलब है इनका जीसीडी एन ओवर डी आएगा। मतलब जैसे 2 और 4 का जीसीडी 2 आता है ना, जो डिवाइजर होता है वो जीसीडी आ जाता है, इसी तरह ये आ जाएगा और सिंप्लीफाई करके डी आ गया। तो इससे ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि आपका जो ये सब ग्रुप है जो एक्स पावर एन ओवर डी से जनरेट हो रहा है, इसका ऑर्डर डी है। और अब हमने प्रूफ करना है कि यही एक सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर डी है, इसके अलावा और किसी सब ग्रुप का ऑर्डर डी नहीं है, यानी इसको यूनिक प्रूफ करना है। तो यूनिकनेस के लिए हम क्या करेंगे? लेट एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ ऑर्डर डी। हम कोई सब ग्रुप ले लेते हैं आर्बिट्रेरी जिसका ऑर्डर डी है, और हम प्रूफ करेंगे वो सब ग्रुप इसी सब ग्रुप के बराबर है, ये जिस ऊपर जिसकी बात हो रही है। तो बाय प्रूफ ऑफ थ्योरम 1 उसी तरह h जो है वो x पावर t से जनरेट होगा, वेयर t इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट x पावर t। और फर्दर हमें ये एक और काम भी करेंगे कि हम डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करके n को t से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका n आ जाएगा n इक्वल्स टू टी क्यू प्लस r। और जब x की पावर में लिखेंगे तो x पावर n जो होगा वो तो आइडेंटिटी हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा? x पावर टी क्यू इंटू एक्स पावर आर। अब ये चीज़ तो आइडेंटिटी हो जाएगी, ये चीज़ इधर आ जाएगी, इधर इन्वर्स हो जाएगा, तो पता चलेगा एक्स पावर आर भी जो है वो एच में चला गया है। लेकिन बाय मिनिमलिटी ऑफ टी आर ज़ीरो हो जाएगा, और आर ज़ीरो होने से एन जो है वो टी क्यू के इक्वल आ जाएगा, और पता चला कि इस आर जो है ज़ीरो हो गया और एन की वैल्यू टी क्यू के इक्वल आ गई। इसी टी क्यू की हमें ज़रूरत है। तो अब फिर हम इस तरह से इक्वेशन लिखेंगे। हम क्या करेंगे? लिखेंगे d इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ h, क्योंकि हमने सपोज किया h का ऑर्डर d है। ठीक है, ये सपोज किया हुआ h का ऑर्डर d है। और उसके बाद हम क्या करेंगे? इस h का ऑर्डर वही है जो इसके जनरेटर का ऑर्डर है, इस पे फार्मूला लगा देंगे n ओवर जी सी डी ऑफ ऑर्डर ऑफ x पावर t इक्वल्स टू n ओवर जी सी डी ऑफ टी एन। अब n की वैल्यू लगाएंगे, अब t क्योंकि इसका डिवाइजर है तो इधर t आ जाएगा, तो ये n ओवर टी आ जाएगा, और सिंप्लीफाई करके t की वैल्यू n ओवर d आ जाएगी। तो ये t की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आपका प्रूफ हो गया कि अगर आप कोई भी सब ग्रुप लें ऑर्डर d का तो वो इसके बराबर आता है। इसका मतलब है दिस इज ए यूनिक सब ग्रुप ऑफ g ऑफ ऑर्डर d। तो ये हमने इस तरह से प्रूफ कर लिया कि हर पॉजिटिव डिवाइजर के लिए हमें एक यूनिक सब ग्रुप मिलेगा उस डिवाइजर जितने ऑर्डर का, और वो जनरेट किससे होगा? एक्स पावर एन ओवर डी। एन क्या था? जी का ऑर्डर था, यानी एक्स का ऑर्डर था, और डी जो है वो डिवाइजर है। मिसाल के तौर पे, अच्छा ये एक रिमार्क देखें, हमने ये नतीजा निकाला है, ये गौर तलब बात है, अगर जी कोई फाइनाइट ग्रुप हो ना तो इसके सब ग्रुप्स की तादाद भी फाइनाइट होगी, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, अगर कोई ग्रुप फाइनाइट है तो इसके सब ग्रुप्स की तादाद कितनी होगी? फाइनाइट। लेकिन हम सिर्फ ऑर्डर को देख के उसके सब ग्रुप्स का हिसाब नहीं लगा सकते कि कितने होंगे। अगर कोई फाइनाइट ग्रुप लिया जाए और हमें उसका ऑर्डर बता दिया जाए तो हम नहीं बता सकते इन जनरल के उसके सब ग्रुप कितने होंगे। उसके सब ग्रुप्स को जानने के लिए हमें और बातों की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ ऑर्डर से हम अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन अगर वो फाइनाइट भी हो और साइक्लिक भी हो, हाँ फिर प्लस पॉइंट है, फिर हम सिर्फ उसका ऑर्डर जान के बता सकते हैं उसके सब ग्रुप कितने होंगे, और किसी चीज को जानने की जरूरत नहीं है।
फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में ये आसानी है कि आप सिर्फ ऑर्डर को देख के उसके सब ग्रुप्स की तादाद जान सकते हैं, उसके सब ग्रुप्स को काउंट कर सकते हैं। यही इस थ्योरम का मैसेज है कि और वो किस तरह काउंट करेंगे, हम सिर्फ डिवाइजर काउंट करेंगे। जितने एन के डिवाइजर होंगे उतने ही सब ग्रुप होंगे, क्योंकि हर डिवाइजर के लिए आपको एक ही सब ग्रुप मिलेगा। अगर ग्रुप साइक्लिक ना होता तो फिर हो सकता है किसी डिवाइजर के लिए आपको सब ग्रुप मिलता ही ना, और हो सकता है किसी डिवाइजर के लिए आपको ज्यादा सब ग्रुप मिलते, फिर आप हिसाब नहीं लगा सकते कि कितने सब ग्रुप होंगे। तो ये इसका मैसेज था। अब आप इस एग्जाम्पल में देखें, इसी थ्योरम में जो बात की गई है उसको एग्जाम्पल की मदद से थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। फर्ज करें जी हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 30 का। इसका मतलब है एक्स का ऑर्डर भी 30 है और जी के जो एलिमेंट होंगे वो कौन कौन से होंगे, एक्स पावर 1, एक्स पावर 2, एक्स पावर 3 अप टू सो ऑन एक्स पावर 29 और एक्स पावर 30 पे आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है, अब हम ये थ्योरम लगाते हैं। ये थ्योरम बताता है हर डिवाइजर के लिए एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा उतने ऑर्डर का। अब पहले देखें 30 के कौन कौन से डिवाइजर हैं। 30 चलें जी 1 से शुरू करते हैं। 30 का एक डिवाइजर है 1, तो 1 ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप होगा ई, और वो किस तरह जनरेट होगा, एक्स पावर 30/1। यहाँ पे एन अब जो है वो 30 है और डी 1 है, ये डी की वैल्यूज हैं। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट डिवाइजर आपका 2 है, तो आप 30/2 अगर लेंगे तो आपको दो एलिमेंट्स का ग्रुप मिलेगा, क्योंकि एक्स पावर 15 से जनरेट करें इसमें दो ही एलिमेंट आएंगे। और ऑर्डर 3 के लिए अगर आप एक्स पावर 10 30/3 लेते हैं तो इसमें तीन ही एलिमेंट आएंगे। आप जनरेट करके देख लें, एक्स पावर 10 इसका स्क्वायर लेंगे 20 और क्यूब पे आइडेंटिटी आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट एक्स पावर 30/5 करेंगे 6 आएगा, तो इसमें ये 5 एलिमेंट आएंगे। इसी तरह 6 डिवाइजर के लिए 6 एलिमेंट आएंगे। 10 डिवाइजर के लिए ये 30/10 करेंगे, इसमें 10 एलिमेंट आएंगे। तो जितना डिवाइजर होगा उतने ही एलिमेंट इसमें आएंगे, और वो जनरेट किससे होगा, एक्स पावर 30/that नंबर। तो इस तरह आपको ये 30 के कितने डिवाइजर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइजर्स हैं। तो इसका मतलब है कि आपको इसके 8 सब ग्रुप मिलेंगे, और यही इसके सब ग्रुप हैं। एक एक्स से जनरेट हो रहा है जो कि जी खुद है, एक एक्स स्क्वायर से जनरेट होगा, एक एक्स एक्स क्यूब से, एक एक्स 5 से, और किसी से आप जनरेट नहीं कर सकते एलिमेंट। एक्स पावर 4 से नहीं जनरेट करेंगे तो वो जो है वो इन्हीं में से कहीं वो आ जाएगा, क्योंकि 4 वो इसका डिवाइजर नहीं है 30 का। ठीक है, वो आपका यही वाला ग्रुप दोबारा आ जाएगा, नया नहीं मिलेगा। तो हर डिवाइजर के लिए आपको एक यूनिक सब ग्रुप मिलेगा। इन जनरल इफ x हैज ऑर्डर n एंड d डिवाइड्स n, देन x पावर n/d इज द यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर d। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाएगा, इसमें n 30 है और ये डिवाइजर्स की वैल्यू है। d की वैल्यू देखें जब 15 होगी तो इधर हम ग्रुप जनरेट करेंगे x पावर n/15 जो कि x पावर 2 आ जाएगा, और इसमें एलिमेंट्स काउंट करके देखेंगे वो 15 ही होंगे। और इसी तरह इसकी क्रॉलरी है। अगर ये वाला थ्योरम और ये एग्जांपल तो हमने अंडर मल्टीप्लिकेटिव सेटिंग में देखी है। अगर इसको एडिटिव सेटिंग में देखेंगे तो ये पावर्स फिर मल्टीपल में आ जाएंगी। ठीक है, एडिटिव सेटिंग में ये पावर्स जो है ये मल्टीपल में आना शुरू हो जाएंगी, और जनरेटर को आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं ये वाला ग्रुप लेते हैं ZN। आप जानते हैं कि ZN भी एक साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है ना, ZN जनरेट होता है 1 से जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, इसके जनरेटर्स और भी होते हैं लेकिन ये 1 से जनरेट हो जाएगा। तो अब इसके जो हर डिवाइजर के लिए, एन के हर डिवाइजर के लिए आपको एक यूनिक सब ग्रुप मिलेगा, और वो किससे जनरेट होगा, वो आपका फिर n/, अब आपने पावर जो है वो मल्टीपल में ले लेनी है। ठीक हो गया ना, ऊपर आपने पावर जो थी वो ऊपर ली थी, और x की जगह आपने 1 लगा रही है। तो ये इसके सब ग्रुप होंगे जो n/d से जनरेट होंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें ना, Z30 है, इसमें 30 का डिवाइजर है 1, तो 30 इसको आप लिख सकते हैं मसलन दिस इज इक्वल्स टू, इन फैक्ट
1 टाइम्स 1, ठीक हो गया। और ये वाला क्या हो जाएगा, दिस इज 30/15 टाइम 1, ठीक है। क्योंकि डिवाइज़र अब 15 है ना, तो ये जनरेट किस तरह होगा, x की पावर n ओवर d से, और d 15 है, तो पावर अब आपने मल्टीपल में लेनी है, इस वजह से क्योंकि ग्रुप अंडर एडिशन है, पावर बजाय ऊपर लेने के अब आप मल्टीपल में ले आएंगे। दोबारा देखें, यहाँ पे अब आपका जनरेटर x था और पावर्स ऊपर थी, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव सेटिंग थी। अब जब एडिटिव सेटिंग होगी तो x की और x जनरेटर की वैल्यू हम 1 लगाएंगे तो x की जगह 1 हो जाएगा, और ये 2 नीचे आना शुरू हो जाएगी पावर्स, 2 भी इधर, ये भी 3 भी इधर, और इस तरह से हमें ये सब ग्रुप मिलेंगे Z30 के। Z30 एक साइक्लिक ग्रुप है, लेकिन ये अंडर एडिशन है, और ये 1 इसका जनरेटर है। तो इसके जो हर डिवाइज़र के लिए आपको एक सब ग्रुप मिलेगा, यानी 1 डिवाइज़र है तो आपको 30 से जनरेट करेंगे, 2 है तो आप 30/2 15 से जनरेट करेंगे, 3 है तो 30/3 10 से जनरेट करेंगे, 5 है तो 30/5 6 से जनरेट करेंगे, 6 है तो 30/6 5 से जनरेट करेंगे, एंड सो ऑन। इस तरह आपके ये सब ग्रुप्स, इन दोनों एग्जांपल्स में फ़र्क यही है, ये मल्टीप्लिकेटिव सेटिंग है और ये एडिटिव सेटिंग है, ठीक है। और इसमें जनरेटर 1 है, 1 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा वही नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको, इस पे गौर करें और इसको समझाने की कोशिश करें। अब यहाँ पे कुछ आसान सी एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान है, सिर्फ आपके समझने के लिए, आपके फ़ायदे के लिए। पहली एक्सरसाइज है, हाउ मैनी सब ग्रुप्स डज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 20 है। अगर किसी साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर 20 है तो उसके सब ग्रुप्स कितने होंगे। बहुत आसान, इसके डिवाइजर्स देखें कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके 6 डिवाइजर हैं, तो इसका मतलब है कि जो सब ग्रुप्स की तादाद होगी वो 6 होगी, ठीक है। इसी तरह आपसे पूछा गया इसके कितने डिवाइजर्स हैं। अब आपको ये नहीं बताया गया कि ये साइक्लिक है कि नहीं है, ये आपका पहला नॉलेज है, ये आपको शुरू के लेक्चर्स में पता है कि ये ग्रुप साइक्लिक है, इसमें एक्सरसाइज में कहीं नहीं लिखा, लेकिन आप जानते हैं ये साइक्लिक है। तो आप साइक्लिक की थ्योरी को यूज़ करें और आप कहेंगे कि ये क्योंकि साइक्लिक है और इसका ऑर्डर 25 है, 25 के डिवाइजर कौन कौन से हैं, 1 5 और 25, इसका मतलब है इसके 3 सब ग्रुप होंगे, क्योंकि 25 के 3 ही डिवाइजर हैं और कोई डिवाइजर नहीं है, ठीक है। इस तरह से डिवाइजर्स को जान के आप बता सकते हैं कि इसके कितने सब ग्रुप। और ये रेफरेंसेस हैं, ये बुक्स हैं, इसमें से बुक्स आपको मैंने दी भी हुई हैं क्लास में, सॉफ्ट कॉपी अगर फिर भी चाहिए हो तो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना लेसन क्लोज करते हैं। तो ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।